Now we are literally into the revision of the various chapters, and I might pick up your question and talk about the subject, or I might start it from right from the beginning, picking up chapters one by one and talking about them once again. So anything would be admissible. The ultimate feel in me is that it it must suit you, your requirements. Although not everybody could be, it would be possible for me to match everybody's requirement, but in general, we would try to come up well with the subject. That is the fundamental feel. Okay. Now, whatever be the situation, look, dear children, now before stepping into the half yearly examinations, once again I would say all the things that I might have been telling you time and again, is that any language has four levels of learning. Any language has four levels of learning. Right from listening, it starts from listening. Okay, so anyhow, if learning is coming through listening, now you are to repeat the same. You are to repeat the same. This is called repetition, and we start speaking. So the next level, if you are listening well and you are repeating the thing, you get used to some ideas, they come to you, and learning keeps on happening. Then you further move on to the third step, that is the reading part. You pick up a book, you pick up a poetry, you pick up a poem, you anything, newspaper or any text written, and you start reading it out. Now since these two steps have been cleared already, you are moving into that with some kind of an understanding. You can, because what is A for apple and B for bat, or A for acrobatics and B for ball? Something has been codified, and since we have a perception, we have an understanding, we have the knowledge of the very same, we can very well and easily we can decode it. तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरह से इस बात को समझ सकते होंगे। कंप्यूटर में भी क्या है, जीरो और वन, isn't it? And what a wonderful world computers are, isn't it, in that sense? So coding and decoding, तो किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में आपके चार लेवल हैं: listening, repeating means speaking, and then reading, and then comes the ultimate thing that is called writing. Okay, so once you have cleared all these three steps, now you write. This happens with just you, your pen and the paper, isn't it? In term and examination, if they are external assessments, obviously what the thing is happening is that you have practiced your subject, you have read all your lessons well, you have mugged up the definitions, you have done a bit of rote learning also, you have rectification bhi kiya hua hai. But if with understanding you have practiced all these things, तो राइटिंग स्किल ऑब्वियसली आपकी थोड़ी पॉलिश्ड होकर आती है, क्योंकि you have a vocabulary, because you have read so many books, you have gone through so many texts, and you have acquired a fabulous content that is called your vocabulary content. तो भाषा में कंटेंट बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक आप इसको मान सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट है तभी तो आप सप्लाई करोगे। इट्स सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई. Now there is a demand in the form of a question, and you are to respond to that question. Until and unless you have it in supply or in store here, how would you be able to respond? आप नहीं कर पाएंगे respond. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में आपको अगर फ्लरिश करना है तो आपको इन सब चीजों को बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ और अपने भले के लिए आप उस प्रयास को करेंगे जिसको कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. Until and unless you practice the subject,
during your study hours, very genuinely, very honestly. Learning is not going to happen to you. चाहे आप 100 कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप हजारों क्लासेस ले लीजिए, चाहे आप कितने ही ट्यूशंस पर आप जाते रहिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दैट डजंट मैटर. कोई एक्सटर्नल हेल्प आपको हेल्प तभी तक कर पाती है जब उस हेल्प को आप व्हाट यू so this is what we have to understand. Now we can pick up a chapter, we can pick up some grammar that we need to learn. ठीक है, तो इसके 3 लेवल हैं आपके किसी भी पेपर में परफॉर्मेंस के. आपके कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं. So this is all about that. Now there are 2 books, snapshots है और hornbill है. There are various chapters. There are sections like poetry section, and there is prose also. So things are like that. So in that sense, the ultimate message from me is that you need to practice. पेपर के 3 लेवल हैं. एक है आपका रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन में there would be a text, and you might be asked, or you would be asked, rather I should use the model would, you would be asked to prepare notes on the same. नोट्स को हम फिर आपके साथ रिवीजन एक कर लेंगे, ताकि जिन्होंने अटेंड नहीं किया होगा उस समय उनको मदद मिल जाएगी. ठीक है, तो नोट मेकिंग जब आप करते हैं या आप अनसीन पैसेज को रेस्पॉन्ड करते हैं अपने आंसर्स के थ्रू, उन क्वेश्चंस को आप करते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज रीडिंग स्किल. I told you the funda, WPM, जितना जिसका ज्यादा होगा, विद अंडरस्टैंडिंग जितना जिसका बढ़िया होगा, उतना ही बढ़िया वो परफॉर्म करेगा और उतना ही ज्यादा वो अपने समय को बचा पाएगा. Kindly be it known to all of you, because this is reading skill. That is very important. Just before writing skill comes reading skill. So one has to make sure that one earns this particular skill. तो आपको जल्दी से पढ़ना है और उसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको मार्क करना है, और अपने नोट्स में आपको एक टाइटल सप्लाई करना है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. आपको क्या लगता है कि भाई इसका टाइटल ये हो सकता है? ठीक है, एक कहानी है, एक टेक्स्ट है, किसी चीज पर बेस्ड है, आपको लगता है कि इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट या मोस्ट एप्ट या मोस्ट सूटेबल टाइटल ये होगा, 1 नंबर का टाइटल. That's it. उसके बाद आप लिटरली अपने नोट्स बनाते हैं. नोट्स ओनली इन पॉइंट फॉर्म, ओनली इन पॉइंट फॉर्म. We have to just notify, not to create grammatically correct sentences. No, it would be a wrong. Okay, and you would be marked negative in that sense. So be very careful. और बहुत आसान सी टेक्निक है, फिर आपके साथ हम उसको डिस्कस करेंगे और लिटरली आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे भी. हम सिर्फ आपको कुछ हिंट दे रहे हैं यहां पर. ठीक है, पॉइंट फॉर्म में एक मेन टाइटल होता है, मींस द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट. उसके नीचे सब टाइटल्स हो सकते हैं. हो सकता है कि पैराग्राफ 3 हो उसमें टेक्स्ट में, तो उनमें पॉइंट नंबर 1, भाई ये बात थी, उसका एक सब टाइटल आप लगाएंगे. उसमें फॉर एग्जाम्पल 1, देन उसमें पॉइंट्स होंगे 1.1, 1.2, 1.3 फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है या सेकंड फील है या सेकंड सेइंग है, whatever it is, or whatever the text reveals, whatever it is. Okay, you have to create accordingly. Now subtitle number 2, so 1, 1.1 उसके सब पॉइंट हो गए, फिर सब पॉइंट 2, देन सब पॉइंट 2.1, 2.2, 2.3. कितना सिंपल है. ओके, और इनको क्या करना है, अब अभी आपको हाथों के इशारे से आप इमेजिन, हम आपको लिटरली पेपर पर नहीं बता रहे हैं, वो इस कारण से नहीं बता रहे हैं. आई वॉन्ट माई डियर लर्नर्स, माई मोस्ट वैल्यूड लर्नर्स, टू इमेजिन द थिंग्स. If you have the power of imagination, you can create wonders. Yesterday also I told you, you must get reminded again and again, you have immense potential.
आप इतने बढ़िया वीडियो बना लेते हैं, आप इतने बढ़िया टेक्स्ट लिख लेते हैं, आप इतना, भाई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इंग्लिश में आप करते हैं तो हिंदी में भी बहुत कुछ गड़बड़ आप कर देते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स है वो तो ओरिजिनल है ना। कहते हैं कि नकल भी अगर करो तो उसमें भी अकल ही तो चाहिए। तो जिसकी अकल जितनी खतरनाक और शानदार, उतना वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। बहुत आसान सी बात आपको बता रहे हैं, हम कोई कठिन पढ़ाई कभी नहीं कराते हैं, हम बहुत आसान सी बात बताते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके भीतर है। यू हैव इमेंस पोटेंशियल। आपको बस, आपकी हालत बस वही है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे और जामवन जी ने, जो कि हम आपके लिए एक रोल अदा कर रहे हैं, हम आपको आपकी ताकत को याद दिला रहे हैं। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग, ना ज्यादा ना कम, लेकिन I have some greater experience of my life, and so I am just sharing my knowledge with all of you, and I do the things very humbly. I'm very down to earth in sharing my knowledge in that sense, and I love when questions are thrown to me, because that gives me a chance to respond. Ask the question to your own good self. Try to respond. Try to find answers. Explore life. और आप ध्यान रखिए, अगर कोई चैप्टर आपको कठिन लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया, वो चैप्टर समझ में नहीं आया, मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है कि बेटा आपने कितनी बार कोशिश करी? आप कोशिश कीजिए, पहले कोशिश कीजिए, तो फिर आपको जो हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो इतनी सी पड़ेगी। और हेल्प करने के लिए है, यस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड ब्लेस यू एज वेल। बस अपने अंदर के पोटेंशियल को आप भूलिए मत, उसको हार्नेस करते रहिए आप, एंड इट वुड डेफिनेटली कम only and only through regular and rigorous sessions, practice sessions, otherwise not. बाहर से कोई कितनी बार आपको करेगा, ठीक है ना? तो सेल्फ हेल्प इज द अल्टीमेट कॉल। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। तो आप एक चैप्टर को एक दिन में पिकअप कीजिए, बहुत प्यारे और बहुत आसान चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर आपको कठिन लगता है, एक पेंसिल लेके बैठिए और उस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसको मार्क कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इजंट इट? चैप्टर मे बी एनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने सभी हैं, बट UT1 के जो चैप्टर्स आ गए हैं वो आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएंगे। Only the chapters that we have done after that. Is it clear? So we would be rehearsing all those things. तो चैप्टर्स हम पिकअप करेंगे। ग्रामर के पार्ट में देयर इज एडिटिंग, देयर माइट बी रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर टू क्रिएट करेक्ट सेंटेंस, दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। उसका भी हम बेसिक फंडा बता देंगे। देखो जैसे सेंटेंस होता है, हम फॉर एग्जांपल कोई भी एट रैंडम पिकअप कर ले रहे हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपने बेसिक ग्रामर अगर पढ़कर प्रैक्टिस करके समझ लिया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बात। एक मकान जब आप खड़ा इरेक्ट करते हैं तो पहले नींव बनाते हैं या पहले छत बन जाता है? कितना सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस का। दुनिया का बड़े से बड़ा, दुनिया का छोटे से छोटा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उससे भी पहले होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। आपके प्राइमरी टीचर्स ने आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझाए होंगे, आई सपोज। हम फिर उन चीजों को आपको रिकॉल करने में आपकी हेल्प करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बट बिफोर यू एंटर इनटू माय क्लासरूम, इफ यू डू योर होमवर्क वेल, इफ यू रिहर्स एट योर एंड बिफोरहैंड, तो आपको उसका अनेक गुना फायदा मिलेगा। दिस इज आई विश टू सजेस्ट यू, and learning would definitely be possible in you easily. नहीं तो कठिन होगा, आपको लगेगा यार पता नहीं ये तो अनोखी सी बात है। अगर आपने पहले उस रास्ते से गुजरे होगे तो आपको लगेगा, आपको याद आता है, अरे हाँ मैं इधर से गुजरा था, मैं इधर से गुजरी थी, लाइक दैट। इट्स दैट सिंपल। So please take good care of your study schedules. I mean to say self-study schedules. जो चैप्टर कठिन हो किसी भी सब्जेक्ट में, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सिर्फ इंग्लिश को ही कीजिए आप, ये फंडा किसी भी लर्निंग पे अप्लाई होता है। आप फिजिक्स कीजिए, मैथमेटिक्स कीजिए, व्हाटएवर, एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस।
मैथमेटिक्स के लिए बताते हैं आपको हम 25 बार किसी एक सवाल को कीजिए, साइंस है बेटा, हम कोई अनोखी बात नहीं बता रहे, ये प्योर साइंस है, साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। कभी फर्दर आपके कोई लेक्चर्स हम ले लेंगे उनसे रिलेटेड, बट एक फंडा बता रहे हैं। जैसे 25 बार किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व अगर करोगे मैथमेटिक्स में, तो वो आपको इधर याद हो जाएगा, फिर उसको फिर जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप। बी इट नोन टू ऑल ऑफ यू, एक सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं। सो पढ़ाई को अगर टेक्निकली आप डील करोगे तो पढ़ाई आपके लिए ये आसान, अदरवाइज कठिन होगी। फिर तो नहीं तो कठिन लगेगा, यार यार ये क्या हो रहा है, अब ये चैप्टर है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। अरे स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लो बट स्टीडी डेफिनेटली विंस द रेस। दिस इज द अल्टीमेट। क्योंकि चैप्टर्स हम दोबारा भी करा देंगे, 4 बार भी करा देंगे, लेकिन आप अगर स्टडी शेड्यूल्स अपने अगर आप री इन्वेंट नहीं करेंगे और उनको बेटर नहीं करेंगे, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ स्टडी शेड्यूल्स. Without that and without completing the work in time, we would always find ourselves in problems. So आप ध्यान रखिए, प्रॉब्लम्स की चाबी हमारे पास होती है। बाहर वाला कोई भी आपको एक्सटर्नली कभी कभी मोटिवेट कर सकता है, आपसे प्यार से बोलकर आपको सहारा दे सकता है, आपको कन्विंस कर सकता है, आपको आपका अगर बहुत परेशानियां हैं तो आपका थोड़ा सा एक मेंटल इमोशनल सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट आपको दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट हेल्प हम खुद ही अपनी कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक आपको प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बता रहे हैं। अपनी मदद अपने खुद कर सकें आप, इतने सक्षम, इतने पावरफुल बनिए, बिकॉज इतने कॉम्पिटेंट और इतनी पोटेंशियल आप अपना नहीं डेवलप करेंगे तो फिर सभी परेशान हैं, कौन आपको कितनी बार मदद करेगा। लाइक so many students help me with these issues with their messages, सर ऐसा कीजिए, I try to learn all those things, और फिर बहुत सारी चीजें सीख भी ली। लाइक दैट पढ़ाई में आपको बिल्कुल यही करना है। इसको आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं, आप उसको ये समझिए कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हम कुछ बेसिक फॉर्मूली आपको बता रहे हैं, और सिर्फ सुनना नहीं है, उसको फॉलो करना है। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। This too is a part of your progress report that you are going to get at the end of the year, and it would obviously be your own performance, your own learning that would be exhibited in the form of that report card, isn't it? तो इस चीज को आप समझ के चले, तो कोई जादू नहीं है। हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते हैं बेटा शॉर्टकट करो और ये जादू हो जाएगा, एंड हमारी ब्लेसिंग्स तभी काम आएंगे जब आपके डोर्स ओपन होंगे। अगर आपके डोर्स ओपन नहीं होंगे तो ब्लेसिंग्स कुछ नहीं कर सकते। ब्लेसिंग्स तो एक वर्चुअल आइडिया है कि चलो आई फील गुड एंड आई इंजेक्ट सम ब्लेसिंग इन यू, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब डोर्स ऑफ योर vistas are open. So enhance your vistas and open the doors always whenever there is a learning knocking at your door. हम जल्दी ही आपके साथ कुछ बहुत बेसिक और फैबुलस फंडामेंट्स ऑफ लाइफ, जिसमें कि आपको लगेगा अरे यार मैं खाली घबरा रहा था, मैं खाली परेशान हो रहा था, ये तो इतनी सिंपल चीजें हैं। और हमारे फंडामेंट्स किसी भी सब्जेक्ट पर, लाइफ के किसी भी फेज पर अप्लाई होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। वो ऐसा नहीं है, हम कभी भी ऐसे नैरो माइंडेड नहीं रहते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को ही देखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। तो since you are right now in front of me, it is my humble duty to tell it to you time and again. Okay, so reading section आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आपको उसके फॉर्मूला बताएंगे कि भाई करते कैसे हैं। WPM जैसे पंखे का RPM है, आप इस पे स्क्रीन में देख रहे होंगे, पीछे एक पंखा चल रहा है ऊपर, वो बहुत तेजी से भी चल सकता है, तो उसके राउंड्स पर मिनट RPM में हम पंखे का पोटेंशियल नापते हैं, isn't it? और जो है बहुत सारे और चीज हैं। हमारी जो रीडिंग कैपेसिटी, हमारी जो स्पीड है, वो WPM से हम नोट करेंगे, वर्ड्स पर मिनट। आप कितना कर सकते हैं, तो उतने कम से कम समय में आप 600 वर्ड्स का अगर एक पैसेज को आप पढ़ पाते हैं और विद अंडरस्टैंडिंग अगर आप कर पाते हैं, यू हैव
practiced. It simply means that you have literally practiced. दो चीजों में आप किसी भी टेक्स्ट को तोड़ सकते हैं. एक होते हैं कंटेंट वर्ड्स और एक होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके बिना काम चल सकता है. हमने जितना भी right from the very start of this class, today's class I mean you say, और अब तक हम जितना भी बोले इसमें से आप ठीक हाफ आप अगर वर्ड्स को कट कर देंगे तो भी आपको पूरी बात समझ में आएगी. कंटेंट वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट और इतने एसेंशियल और इतने आपके लिए जरूरी होते हैं, isn't it? तो अगर आप सिंपल सी एक टेक्निक समझ जाइए कि भाई राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इंपॉर्टेंट कंटेंट वर्ड, इसके बिना काम नहीं चलेगा. भाई किसके बारे में बात हो रही है? इज अ सब्जेक्ट. राम इज अ गुड बॉय, किसके बारे में बात हो रही है? राम के. सो इट बिकम्स समथिंग स्पेसिफिक बिकॉज इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट. अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, I am a good boy, so it replaced the pronoun means the personal pronoun I. It has replaced the subject. So now I becomes the subject. कितना सिंपल सी बात है. Okay, Ram is है, ठीक है, कैसा? Good boy. अब यहां से is हटा दीजिए आप. हालांकि is ऑक्सिलरी, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है. तो ये वॉज नहीं है. तो हमें सेंटेंस में क्या समझ में आता है इससे कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है. राम एक अच्छा लड़का है, तो ये वर्तमान काल है. ये राम एक अच्छा लड़का था, अच्छा अब बुरा हो गया है क्या? लाइक दैट वन में say it because it has been said okay once you were a good boy. एक बार की बात है. once upon a time you used to be a good boy. तुम एक अच्छे बच्चे हुआ करते थे. बच्चे के लिए चाइल्ड, बॉय के लिए लड़के, isn't it? बट आजकल तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो. you are making a nuisance these days. So many varieties of sentence can be created. बस A for apple से Z for zebra, इतनी है अल्फाबेट बस, और आप यू कैन क्रिएट वंडर्स. आप देखिए हम तो आई वाज लिटरली अमेज्ड. इतने लंबे लंबे 10 किलोमीटर बराबर आपने लंबे लंबे कितनों बच्चों ने तो मैसेजेस कर दिए, isn't it? तो भाई आप लिख सकते हो, बस ग्रामेटिकली आप उसको करेक्ट कर लेंगे तो फिर एक्सप्रेशन में आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, उन्होंने बहुत शॉर्ट टेक्स्ट भेजा लेकिन उसमें द वोकैबुलरी that they had, I was amazed once again कि अरे यार वाह, इसको ये भी पता है, इसको ये भी पता है. I was impressed. If you impress your evaluator, you get marks. एक कनेक्शन है, मेरी जेब में 5 नंबर है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, लो मैं क्यों रोकूंगा नंबर भाई. लेकिन आपके कंटेंट में आपने वैल्यू पॉइंट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं. आपने अपने एक्सप्रेशंस में जो करेक्टनेस होनी चाहिए ऑफ द एक्सप्रेशन मींस ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे. और चलो एक आध हुआ कोई बात नहीं है, फॉरगिव कर भी सकता है कभी इवैल्यूएटर. आपने उसको शुरू से अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छे प्रेजेंटेशन से आपने इंप्रेस किया है, वोकैबुलरी कंटेंट अच्छा रखा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इवैल्यूएटर को अगर समझ में आ रही है तो आपके फिर मार्क्स कटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, ओके, द पिक्ड अप चांसेस और द chances that are there for you and the total number of chances upon पूरी प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है. बस दैट्स. तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है नंबर पाने की. गलतियां जितनी करेंगे प्रोबेबिलिटी आपकी नंबर कटने की बढ़ जाएगी. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिहर्स ऑल दोस थिंग्स. जिसका होमवर्क बढ़िया होगा, I'll just take 1 or 2 minutes more. Please deal with the situation and practice. तो एक ही चीज है बेटा, practice, practice, practice and practice. So from tomorrow I'll be picking up a chapter जैसे कि Albert Einstein at school. Okay, so I might pick up that question. Chapters की practice करनी है, कहीं से भी कर लो. आप भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको एनलिस्ट कर देंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई बी पिकिंग अप द थिंग्स. हम तो एक फ्लो में बोलते हैं तो बस
बोलते चलते हैं, तो एक फ्लो में आप उसको अपने पेंसिल से नोट कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? So you will not only get the class well, you would get your particular point cleared out by the teacher, and I'm there to help you. अगर मेरी हेल्प मैं यहां से इंपार्ट कर रहा हूं, मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, और आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं अच्छे तरह से, तो भी वो बेकार है। और मैं अगर आपको सब्जेक्ट कमांड से पढ़ा ही नहीं पा रहा हूं, मुझे खुद ही नहीं आता, तो भी बेकार है। So there must be a perfect balance in between the two, the transmitter and the receiver. Receivers are right now what you as learners are, and transmitter obviously a very humble teacher. So please be it known. हमने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझी, इसलिए आपको एक जनरल फंडामेंट ऑफ लर्निंग हमने आपको बताया, ठीक है? इसलिए मेक श्योर दैट यू रिहर्स।